Welcome to all of you in this internship training program. This training program level 1 course for those students who come for the first time in the training, industrial training. If you are already going anyone industrial training, please inform to me. Otherwise, our database all are going very first time for this first type of training. Okay. So I want to some just check today registrations and regarding test your basic background. So one by one. Okay. So please unmute and one by one inform your my question. Give the answer. Answer for my question. Mr. Astin Sanjay. First you unmute. Yes, sir. Your back for how many period you join this training? So 4 weeks, sir. 4 weeks. Okay. Your college? So VIT, sir, Velu Institute of Technology. Okay, well. Are you comfortable in the both language or only English? I'm comfortable in both, sir, English and Hindi. English and Hindi means okay. Not issue. Or earlier any training any industrial training by you earlier? No, sir. No, first time. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Astin, one more question. Your background electronics, either IT or computer science? EC, sir, Electronics and Communication. EC. Okay, thank you. Thank you, sir. So first type of question for everyone. Okay. So for the due to the shortage of the time, I request to you all are please write in the chat box how many period for you here join, your college short code, branch, okay, and language preferred. English and Hindi both are comfortable. Okay, so it is more easy. Combine and then answer. Yes, Krishna Savle. You are give the name. No name. First, you write for 4 weeks electronic and communication and language preference English and Hindi both. Either only English. Okay. Anubhav. Okay. Yajuvendra Aswardhan Raj. Okay. No problem. Please write complete message and then share. It is recording, na? So no problem. It is also as attendance for joining. Yes. Like Mirnal, very proper manner. His right message. For the 6 week is the JP University of Engineering and Technology. Language prefer Hindi and English both. Okay. So remaining participant as the same manner give the answer. बाकी जितने भी लोग हैं ना एक साथ ही आंसर दो. ये रिकॉर्डिंग में इसको मैं उसमें लगा दूंगा, आपके रजिस्ट्रेशन में लगाना. यस ज्योति राइट. ओके वेरी नाइस. हाँ फर्स्ट टाइप देना है. प्रिया यस ओके नो प्रॉब्लम. संतोषिता प्लीज. या प्रियांजना. ओके नो प्रॉब्लम. कृष्ण सावले नाउ इट गुड. ओके वेरी नाइस. अब अच्छा है. अब आगे बढ़िए. विक्रांत वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स. आप भी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा. वेरी नाइस वेरी गुड. इलेक्ट्रॉनिक्स ओके. मोस्टली स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. Pija, again you only write your name. Okay. Again write in the first types of message. जैसे बाकी लोग मैसेज लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखना है. दीप्ति किरखाना. Are you getting my voice? Yes or no? Yes. 2 weeks. Okay. JNTS. Okay. Electronic and Communication. Good. सुदीप चौरसिया बनारस के हो? चौरसिया जी. नहीं सर, इलाहाबाद तो प्रयागराज. प्रयागराज से हो? मतलब इलाहाबाद का नाम बदल गया. पहले इलाहाबाद मुंह से निकलता है, बाद में प्रयागराज निकलता है. हाँ सर. हमारे रूममेट हैं मिस्टर गौरव चौरसिया. इंजीनियरिंग के टाइम पे वो पक्के बनारसी थे. ठीक है. ओके वेरी नाइस. ओके स्वाति
नो प्रॉब्लम। बढ़िया है यार, हिंदी भाषा में सभी को आता है, फिर क्या समस्या है। कौन कह रहा था कि बोलो सर मुझे हिंदी नहीं आती। अब इसको नहीं आती तो इसको अलग से कराएंगे। चलिए कोई बात नहीं। बाकी लोग भी लिख दीजिए, आपका ये जो आप शेयर कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मोड में है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन हम जमा करा देंगे आज की डेट में कि आपने रजिस्टर्ड कर दिया। अगर आपका कोई मेट, इफ योर एनी मेट इज नॉट बाय मिस्टेक ज्वाइन दिस सेशन, तो प्लीज इन्फॉर्म हिम। ओके। और जो भी हम कराएंगे उसका पूरा सेशन कर देंगे। एनीवन हु इज नॉट नोन, आप सभी जानते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, किसी वजह से रह जाएगा तो नहीं। संतोष प्रसाद, आर यू अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? यू आर वन। Means I can understand a little bit like that. Not totally, like little आप bit. समझ सकते हो बट Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली यू आर ओनली वन कैंडिडेट टिल टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, yeah. समझ सकते हो ना, कोई इश्यू नहीं। पवन, Yes, sir. पवन कुमार यगति, यू आर सेकंड पर्सन, यू आर नॉट पवन कुमार यगति। यस सर। आर यू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज आर नॉट? समझ रहे थे सर, बट बात करना बिल्कुल नहीं नहीं, आपसे बात नहीं करना। अब एक्चुअली क्या है, लॉट ऑफ मोर देन मैक्सिमम पार्टिसिपेंट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एज पर दिस ग्रुप, so my training as per the group. Okay, so no problem, you are the second person. If I am telling some time in Hindi language, so are you understand, yes या no? या अगर मैं कभी हिंदी Yes, sir. बोलूँ, अगर मैं आपसे नहीं कह रहा कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके सर। लेकिन यह है कि दैट इज द तो कॉम्बिनेशन। समझ आते हैं सर? समझ में आता है ना, बस ठीक है। हाँ समझ में आता है सर। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑल आर मोस्टली ओनली टू पीपुल, दे आर आल्सो अंडरस्टैंड, बट मैंने आपको लिखना नहीं है, एग्जाम भी नहीं देना मेरे को ऐसा भी। ओके, यू आर टोटल 20 बट टिल टाइम ओनली 17 ज्वाइन, हु इज 3 रिमेनिंग? 3 कौन रह गए? Okay, one more question, last question for related to training. This time 1 to 2 p.m. is comfortable, yes or no? आपका ये समय सही है? इस टाइम पे आपको वही रखूं डेली रूटीन, क्योंकि 10:30 to 11:30 ऑलरेडी इंगेजेड है या आपको? ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? देयर टाइम पीरियड? ओके, 1 to 2 p.m. all are okay. Thank you. Okay, let's start. Okay, all are comfortable, no problem. Very good batch, no problem. ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इन दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम माय फोकस कि हाउ टू द ट्रेडिशनल नेटवर्क एंड हाउ टू माइग्रेट इन द न्यू डेटा नेटवर्क। एंड आज के सिनारियो में हम लोग 4G 5G की जो बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ओके, एंड ट्राई टू द एंड ऑफ द सेशन, end of the training, not session, you are able to complete, make a practical live demonstration, practical live demonstration in your campus। जैसे कि होपफुली कि all are Wi-Fi internet, either internet in your college provided to in hostel। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉलेज है आप सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होगा थ्रू वाईफाई, थ्रू द लैंड केबल।
So how such types of internet provided to all of you will discuss, and practical implementation of such types of internet, and how to secure this internet. जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी सिक्योरिटी कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में टुडे ओनली डिस्कस 4 पॉइंट and further give one question to all of you for the next session. Tomorrow International Day of Yoga, and as per our Prime Minister Mr. Modi given to instruction all government employees and all public of India and request they are on 21st must be doing yoga and take picture and share everywhere. ओके, तो मैं तो योगा टीचर ही हूँ, आई एम आल्सो योगा ट्रेनर। तो मेरे को सुबह टुमारो मॉर्निंग 5:30 टू इवनिंग 7:30 होल टाइम बिजी, तो हैंस टुमारो देयर इज नो कॉलेज एंड नो क्लास, सेशन विल बी नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे। ओके, अगेन आई रिपीट, कल हमारा योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए तो ऑर्डर किया हुआ है कि आप सभी को योगा में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारे इससे इंडिया की एक नाम है। तो और उसकी जितने भी पिक्चर्स हैं आप करेंगे और पिक्चर्स को जहाँ भी पॉसिबल है आप शेयर करेंगे। ओके, और मैं एज ए योगा ट्रेनर यहाँ पे इंटरनेशनल योगा ट्रेनर भी हूँ। तो मुझे क्या करना है कि मॉर्निंग 5:30 टू 7:30 ऑल टाइम मुझे कहीं ना कहीं योगा पे ही डेमोस्ट्रेशन देना है। तो कल की जो क्लास है, अपकमिंग टुमारो क्लास विल बी पोस्टपोन्डेड फॉर डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो वेडनेसडे को अगली क्लास होगी। ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंड आल्सो शेयर सच इंफॉर्मेशन इन योर ग्रुप। ओके, तो नाउ विदाउट डिले आई जस्ट स्टार्ट एंड डिस्कस सम पॉइंट। मैं आज कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूँगा और वन बाई वन बी इंटरेक्टिव, आप सभी लोग सवालों का जवाब जरूर दें। तो इसमें से होपफुली कि कई लोग नोएडा वाले जो हैं, आई थिंक दे आर सेम कॉलेज, तो हो सकता है कि दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड टू ईच अदर। ओके, तो मैं उनको पहले पकड़ूंगा एक कॉलेज में होने की वजह से। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेलीकॉम वर्सेस आईटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेलीकॉम एंड आईटी। सेकेंड वी डिस्कस रिगार्डिंग इंटेलिजेंट डिवाइसेस। And third is that the smart devices, and last one is the AI, artificial intelligence based devices. Mostly candidates on your batch related to the electronic and communication, 3 candidates related to the computer science, and 1 candidate related to the IT. It is very good। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि आपके टोटल आउट ऑफ 23, ठीक है, 17 टिल टाइम ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग। तो ये अच्छी बात है कि इसमें से 17 लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन जो एज पर आवर डाटाबेस टोटल मैक्सिमम पीपुल तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ पीपुल आपके कंप्यूटर साइंस, एंड 1 पीपुल रिलेटेड टू द आईटी। ओके, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आपके सामने मैंने कुछ चीज़ लिखी है, तो मेरे पास होपफुली कि सभी लोग जवाब दे पाएँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो पहला सवाल है मैं पूछूंगा किसी को अनम्यूट करके, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने नाम से ही अनम्यूट करा लेता हूँ, कृष्णा सावले। आप अनम्यूट हो जाओ क्योंकि मेरा भी नाम कृष्णा ही है ना, ठीक है। तो अपने नाम से शुरू कर लेते हैं। ओके, तो कृष्णा सावले, जस्ट टेल मी, आप मेरे को ये बताएं कि टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी वर्क इन टेलीकॉम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेलीकॉम, बहुत ही सिंपल मैनर में। इसमें टेलीकॉम यस, एक कम्युनिकेशन रहता है कि 2 पर्सन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इन दैट वे द टेलीकॉम इज डिफाइंड। नो डाउट टेलीकॉम इज द रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टेलीकॉम में और अगर हम इजी मैनर में चले जाएं कि अगर वेरी इजी मैनर क्वेश्चन कि हम लोग टेलीफोन से क्या करते हैं, और लोकल लैंग्वेज,
आप बिल्कुल अपने आम भाषा में बताएं। अगर कोई पूछे एनीबॉडी आस्क टू यू कि भाई टेलीफोन से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या बताओगे? शेयरिंग होता है, सिंपल टेलीफोन है तो क्या करोगे? बातें होगी। बातचीत करेंगे। वेरी, जस्ट कीप द पॉइंट, आप उस पॉइंट को पकड़े। इफ यू हैव टेलीफोन, अगर हमारे पास टेलीफोन है तो बेसिक वर्क ऑफ द टेलीफोन, डायल टू ईच अदर एंड टॉक टू ईच अदर। हम एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे और बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है ना, टेलीफोन का काम यही है। ओके, इन करेंट सिनारियो, इसमें आप ये बताओ, आज के सिनारियो में आप के पास चांस है, यू हैव द चांस, आप कितनी बार लोगों से नंबर डायल करके बात करते हो आज की दुनिया में? जितने फ्रेंड्स से बात करते हो? मुझे तो नहीं लगता अपने फ्रेंड से नंबर डायल करके बात करते हो। एक्चुअली सर सेव होता है ना मेमोरी में, तो अभी जरूरत नहीं कि सारे मोबाइल नंबर या लर्न करो मेरे ऐसा। पॉइंट को पकड़ नहीं पाए, अभी भी नहीं पकड़ पाए। आज की डेट में हम और आप, यू आर वेरी गुड टाइम पीरियड, आप बहुत ही अच्छे समय पीरियड में है, बिकॉज यू आर वेल नोन व्हाट इज द टेलीफोन। नंबर डायल करना, आर यू वेरी वेल नोन कि व्हाट इज द नंबर डायलिंग। बट आपके पास एक कम्युनिकेशन का न्यू फॉर्म है। क्या फॉर्म है? यू जस्ट पिक अप योर फोन एंड टेक व्हाट्सअप। व्हाट्सएप पे क्या करते हो? बिना नाक कान का टकला भेज देते हो, विदाउट ना, जस्ट सेंडिंग द सिंबल इन व्हाट्सएप। आप भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम है? वो भी कम्युनिकेशन है या नहीं? अपने दोस्तों से बात करने के बजाय आप व्हाट्सएप उठाओ, सेंडिंग द मैसेजिंग ईच अदर, आइदर मल्टीमीडिया मैसेजिंग में यू कैन सेंड वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट, पिक्चर, एवरीथिंग। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? यस सर, कम्युनिकेशन है। आजकल यही करते हो, नंबर डाल दो तब करते हो जब मजबूरी हो जाती है। हाँ सर। मेरे कहने का मतलब वेरी क्लियर है, टेली कम्युनिकेशन कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है आईटी कम्युनिकेशन में। ऑल, बिकॉज यू आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो कंप्यूटर है उनके लिए भी, आईटी इज नथिंग, सिंपल वर्ड, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। अगेन आई रिपीट, टेलीकम्युनिकेशन का नया फॉर्म ही आईटी है। अर्लियर इन ओल्ड ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन, नंबर डायलिंग सिस्टम, आपको मालूम है, यू आर वेरी वेल नोन व्हाट इज द नंबर डायल। बट आफ्टर दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 के बाद, nobody डायलिंग टू ईच अदर। अपकमिंग टाइम दिसंबर 2020, ये मेरा एक विजन है हम लोगों का कि दिसंबर 2025 के बाद कोई भी एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेगा। ठीक है? और आफ्टर 10 ईयर, सपोज यू आर सीट माई प्लेस एंड सम न्यू गाई जस्ट टेकिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आप क्या बोलोगे? यार हमारे टाइम में, इन माई टाइम पीरियड ना, माई इरा, देयर टेलीफोन नंबर डायल सिस्टम होता था। तो वो पीढ़ी कहेगी व्हाट इज द नंबर डायलिंग, उनको नहीं समझ में आएगा। दे आर नॉट कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नंबर डायलिंग। बट यू आर गुड एंड लकी कि आपके पास में नंबर डायल करना भी मालूम है। और क्या हम लोग अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। जूम इज द प्रॉपर कम्युनिकेशन, इट इज आईटी कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेशन है? बिल्कुल कहेंगे आप। यू कैन सी माई वीडियो, यू कैन लिस्टन माई ऑडियो, ओके, यू कैन ऑल्सो सी माई द screen, okay, so this is also communication. The new version of, again I repeat, the new version of telecommunication is known as IT communication. और IT communication को चलाने के लिए, for IT communication required hardware and software. So hopefully all are getting my point कि telecom is nothing in the current scenario, everything convert in the new communication concept, and this is the IT communication concept. Okay, तो नेक्स्ट अगला चीज है, अगले नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने 3 चीजें लिखी हैं। दे आर 3 इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई बेस्ड डिवाइसेस। आई नो कि दिस डिवाइसेस ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर, बट इन द प्रैक्टिकल मैनर क्या आपको मालूम है कि नहीं, ये मेरे को जानना है। ठीक है, तो कौन बताएगा? देवांशी। देवांशी, आर यू नो कि इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है? What is the intelligent devices? Devanshi Chaudhary. Yes, sir. Give the Sir, example. intelligent, like most of the devices that we like use in today's
era, like for example, a smart washing machine or a smart TV, like they can be categorized under intelligent devices. Sorry, I interrupt you. I not go for smart. I just asking about intelligent. Smart is the third number. I just point number 2, intelligent device. First is clear, then go. Okay. कोई बात नहीं. Again, are you getting my point? मैंने स्मार्ट के लिए नहीं पूछा है, मैं अभी आपको इंटेलिजेंट Yes, sir. बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो पहले आप बताओ इंटेलिजेंट डिवाइस. एनी एग्जांपल? सपोज करो वॉशिंग मशीन इन टेक्स्ट. चलो एनीवे, आई जस्ट चेंज दिस क्वेश्चन इन द अनदर फॉर्म. मैं इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करता हूँ. सपोज you go to the market. This question for all of you, but you are on mute, so you directly communicate to me. Suppose Devanshi, you go to the market. आप मार्केट जाते हैं and purchase a fan. Are you know fan? Okay. Yes, sir. पंखा खरीदना चाहते हैं. ठीक है. तो shopkeeper, welcome to you. Come Devanshi, I have very welcome to in my shop. First we clear what kinds of you fan required. Normal fan, just right here. You most clear. For intelligent, okay? So you suppose he asks you what types of fan. Normal fan. Second, intelligent fan. Third is the smart fan. And fourth is the AI fan. Okay. Now my question is, what is differentiate in these are fan? So first you tell me in the normal fan, what is the feature of the normal fan? जो नॉर्मल पंखा होगा देवांशी, वो क्या होगा? Sir, normal fan means like the fans like which we use in our like daily life, means the ones which is operated through a switch. Okay. Manually. Yes, sir. Okay. Okay. Any other? Normal fan में फिजा, can you say? फिजा आप बता सकते हैं पंखा के बारे में कि नॉर्मल पंखा है. देवांशी ने जो बोला उसका और एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैन यू एक्सप्लेन? Sir, a normal fan that is being used in homes. ओके. अ नॉर्मल फैन, आप अपने घर के लिए ही पंखा खरीदने जा रहे हैं, होम के लिए. लेकिन आज की डेट में इन द करंट टाइम अगर आप दुकान के पास पे जाएंगे तो दुकान वाला कहेगा कि फिजा जी आप मेरे को ये बताएं कि मेरे पास 3 टाइप्स का फैन है, तो आपको नॉर्मल फैन दिखाऊं या इंटेलिजेंट फैन या स्मार्ट फैन या फैन. तो फर्स्ट यू टेल मी कि घर पे जो पंखा है नॉर्मल फैन, उसका फीचर क्या है? Sir, manually operate होता है. बिल्कुल सही बोला. दैट इज द मैनुअली ऑपरेट. ओके, नो प्रॉब्लम. आइडर उसके ऑन ऑफ करना मैनुअली, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज दैट इज द मैनुअली, रोटेशन दिस इज मैनुअली. नॉर्मल फैन, नो प्रॉब्लम. ओके. नाउ व्हाट इज द इंटेलिजेंट फैन? इंटेलिजेंट में क्या होगा? Sir, maybe वो sense करेगा. मे बी सेंस करेगा. ओके. अच्छा, एक चीज और बताओ, आप इंटेलिजेंट हो यस या नो? Yes, sir. कैसे कैसे आपने अपने आप को इंटेलिजेंट बोला? Sir, machine and humans की different capabilities है. आपके इस ग्रुप में आप अकेले अपने कॉलेज की तरफ से हैं, एनी अदर स्टूडेंट है कोई में? अकेले हैं सर. आप अकेले हैं. ठीक है, आप म्यूट हो जाओ, कोई बात नहीं. एंड जेपी नोएडा वालों, आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाओ. यस सर. ठीक है. विक्रांत, आपका प्यारा दोस्त है कोई इस ग्रुप में आपके साथ? बैचमेट? सर मेरा सर बैचमेट है, अनुभव राय. हाँ, कौन? अनुभव? यस सर. अनुभव राय. यस सर. ओके, ठीक है. अनुभव राय, ठीक है. दोनों आप लोग अनम्यूट रहिए और वी डिस्कस एंड देन क्लियर दिस ऑल पॉइंट. ओके. अब बहुत ही सिंपल मैनर में, आई नो कि आफ्टर दिस डिस्कशन यू आर नेवर कंफ्यूज इन फ्यूचर. ठीक है, ऑल आर ऑफ यू. मैं पक्का श्योर कर रहा हूँ कि ये डिस्कशन जो अभी होगा दोनों के बीच में, आप आने वाले टाइम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके. तो फर्स्ट टेल में विक्रांत कि आप अनुभव को इंटेलिजेंट मानते हैं, यस या नो? यस सर. अनुभव, आप मानते हैं विक्रांत को, यस या नो? जी सर.
अभी पूछ रहा हूँ इसलिए यस कह दिया, बट क्यों मानते हो? सर क्योंकि हम खुद का दिमाग लगा सकते हैं कोई भी चीज करने में। खुद का दिमाग लगा सकते हैं, तो मशीन में कैसे लगेगा, पंखे के अंदर कैसे लगेगा? हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन फैन? सर वी कैन कंट्रोल फैन थ्रू वेरियस डिवाइसेस, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे सर वही हम जानना चाहता सर हूँ। वाईफाई से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते वाईफाई हैं। तो जाना ही नहीं है, वाईफाई तो बाद की बात आएगी, अभी तो हम इंटेलिजेंट की बात। वाई आप बहुत, यू आर जंप टू हाई, वन बाई वन हाई। पहले नॉर्मल फैन एवरीबॉडी नो, मैनुअली ऑन ऑफ हो गया। नाउ नेक्स्ट लेवल इज इंटेलिजेंट फैन। ओके, तो अब अगेन आई रिपीट, दुनिया की, वर्ल्ड की हर एक चीज इंटेलिजेंट होगी। कीप इन द माइंड, दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी इफ दे हैव टू थिंग्स। ध्यान से आप सुनिएगा। पहला सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। ये मैं इंसान के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा, भगवान के द्वारा कोई भी चीज बनाई गई हो, इफ यू हैव दिस टू थिंग्स यू आर इंटेलिजेंट। तो अनुभव आपके पास सेंस है, मेमोरी है, यू आर इंटेलिजेंट। ऑल कैंडिडेट, ऑल स्टूडेंट हैव सेंस एंड मेमोरी। सभी के पास सेंस और मेमोरी है, अभी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? अब किसी का सेंस ज्यादा हो सकता है, किसी की मेमोरी ज्यादा हो सकती है। एनीबडी हैव मोर सेंस, एनीबडी हैव मोर मेमोरी, अकॉर्डिंगली यू कैन से दे आर मोर इंटेलिजेंट। ठीक है ना? अब ज्यादा कम है, इनमें सेंसर ज्यादा होगा, मेमोरी ज्यादा हो। तो अगर एनीथिंग मिसिंग बाय दिस, आउट ऑफ दिस 2 पॉइंट, अगर किसी का सेंस मिस है तो क्या कहते हो? नॉनसेंस कहते हो नहीं? और अनदर थिंग, अगर किसी की मेमोरी गायब है तो क्या बोलते हो? हाफ माइंड। ओके, तो इन डेली लाइफ यूज ऑफ सच टाइप्स ऑफ वर्ड, हम अपने जीवन में, आंसर इज हियर। अब आपने नॉर्मल फैन, एवरीथिंग इज मैनुअल, नो प्रॉब्लम, ऑन ऑफ, रेगुलेशन, स्पीड कंट्रोल, एवरीथिंग मैनुअल। बट इंटेलिजेंट फैन, देयर वन सेंसर चिप एंड मेमोरी चिप इनबिल्ट इन दैट फैन। उस पंखे के अंदर एक सेंसर लगा दीजिए, एक मेमोरी चिप लगा दीजिए, वो आपका जो पंखा है वो आपका इंटेलिजेंट फैन होगा। बिकॉज यू कैन कंट्रोल बाय द रिमोट सिस्टम। आप रिमोट से यू कैन ऑन ऑफ, यू कैन स्पीड कंट्रोल, यू कैन रोटेट, एवरीथिंग आप कर सकते हो। ऑल आर गेटिंग माई फ्रेंड कि इंटेलिजेंट फैन क्या होता है, मालूम, समझ में आ गया? वो रिमोट से कंट्रोल होगा। ठीक है, ठीक है। तो अनुभव आप ये बताओ, अब तो डेफिनेटली विक्रांत भी इंटेलिजेंट हो गए, कम ज्यादा आपस में लड़ झगड़ लेना वो अलग मैटर है। ठीक है ना? अब स्मार्ट हो या ना, ये बताना है। यस, अब बताओ, आर यू स्मार्ट? यस या नो? पहले अपने आप के बताओ, अनुभव के बारे में नहीं पूछूंगा। विक्रांत आप बताओ, आर यू स्मार्ट? यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट, बट नाउ अगेन टेल, यू आर स्मार्ट, यस या नो? यस सर। अब कैसे बोला यस? इंटेलिजेंट तो बता दिया, हाउ टू। डेफिनेटली कि स्मार्ट मीन्स कि इंटेलिजेंट तो रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना? इंटेलिजेंट प्लस इसमें व्हाट इज एडिशनल फीचर ऐड डिड बिकम स्मार्ट? कुछ समझ के बताइए। आपने कहा यू आर ए स्मार्ट, कैसे हुआ? पवन, पवन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? Yes, sir. आर यू स्मार्ट? यस या नो? टेल मी। Yes, sir. हम आज की डेट में बात करते हैं स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम। ठीक है ना? एवरीथिंग स्मार्ट वर्ड इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड ना? Yes, sir. तो ये, तो आप स्मार्ट हो, तो हाउ टू डिसाइड कि यू आर स्मार्ट? आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप स्मार्ट हो? हम नहीं डिसाइड करते सर। ओके, और किसी को और कोई बनाना? यस यस, टेल मी। You are the people decide ओके, on the way of. ठीक है, थैंक यू। एनी किसी और को कुछ कहना है? और किसी को अनम्यूट करते हैं। यस, यशवर्धन, आपका नाम बहुत ही पावरफुल लग रहा है, यशवर्धन राज। अनम्यूट प्लीज, यशवर्धन। यस सर। आप स्मार्ट हैं या ऐसे नो? हाँ सर। कैसे? इंटेलिजेंट हो गए, नो डाउट, बिकॉज यू हैव सेंस एंड मेमोरी बोथ।
व्हाट यू आर स्मार्ट, यस या नो? हाँ सर। वही पूछना हो ना, कैसे जो आपके सेम थिंग विल बी अप्लीकेबल इन योर इन मशीन। ओके, जो Yes, आपके ऊपर हो मशीन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। ज्योति आप बोल रहे हो कि अपने आप जो काम कर ले, अच्छा वो तो सेंसर में भी हो सकता है ना, इंटेलिजेंट में भी हो सकता है। स्मार्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने कभी सोचा है कि कभी भी सोचा है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग झगड़ते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं? अभी अपकमिंग टाइम पीरियड इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G। तो कभी आपने सोचा कि इसमें क्या होने वाला है? व्हाट इज द न्यू इन दिस सस्पेक्ट? कभी सोचा है किसी ने? अपना एक्सपीरियंस मस्ट बी शेयर, बिकॉज आई एम नॉट योर टीचर, आई एम हियर जस्ट फॉर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस एंड knowledge on practical way. Okay, okay, don't worry. Yes, fast and easy method of doing things, decision taking। मृणाल ने भेजा, why you are sending an open message please, everybody must be read ना। आप लोग ओपन मैसेज भेजिए ताकि जो मैसेज भेज रहे हैं सब लोग को लर्निंग है। कभी भी ऐसे मैं एक चीज बताता हूँ, उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं तो आपको आंसर भी दे, जस्ट 1 मिनट। टुडे इंजीनियरिंग इज वेरी इजी इन माई ओपिनियन। जितनी आपकी एज नहीं है ना, 22 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम IT सेक्टर, ओके, एंड माई इंजीनियरिंग स्टार्ट इन 1994 एंड 1995। 1995 में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी। तो आई नो कि इन दिस ग्रुप नो बडी दैट टाइम बॉर्न, कोई भी इसमें पैदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही रेयर एक, हाँ 1% मे बी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई नो कि इन दिस होल ग्रुप नो बडी विल बी बॉर्न ड्यूरिंग व्हेन आई ज्वाइन माई इंजीनियरिंग। तो उस समय इंजीनियर बनना दैट टाइम पीरियड वेरी टफ, बहुत ही कठिन होता था। तो ऑल इन यूपी, आई एम बिलोंग फ्रॉम द वाराणसी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो मेरे को उस टाइम पे इंजीनियरिंग एडमिशन इज नॉट इजी, एंड टोटल होल यूपी स्टेट ओनली मैक्सिमम पॉसिबल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओवरऑल मे बी ज्वाइन IIT, मे बी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एंड MNR। वी हैव द 3 ऑप्शन, सेंट्रल लेवल IIT and यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, एंड द थर्ड इज दैट आपका जो तीसरा था लोकल स्टेट लेवल MNREC, ओके। एंड ओवरऑल टोटल 2072 स्टूडेंट एट ए टाइम टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग। एक बार में केवल 2072 स्टूडेंट ही एडमिशन लेते थे, ठीक है। तो यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो कि दैट इज नॉट इजी टू एडमिशन। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो करंटली नोन एज द IIT रुड़की आल्सो, बट दैट माय टाइम पीरियड यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, एंड सेपरेट एग्जाम टेकन बाय दैट यूनिवर्सिटी, उस एग्जाम जो अलग से लेता था, एंड टोटल 90 सीट। तो एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुआ, 90 सीट का सिलेक्शन हुआ, बट दैट टाइम नॉट इजी, क्योंकि सेपरेट एग्जाम होते थे। तो यूनिवर्सिटी ये सोचती थी कि पता नहीं सारे बच्चे ऑल स्टूडेंट आएंगे कि ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। वो वेरी फर्स्ट डे दे ऑल आर इन कॉमन सेमिनार हॉल एक होता था, वहीं पे वो बैठाते थे। तो हम लोग बैठे हुए थे। तो डेफिनेटली उस टाइम पे टॉप एग्जाम, इंडिया के डिफरेंट लोकेशन, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ आते थे। तो सब एक दूसरे को जरूरी नहीं है कि जानते हो। तो पहले दिन उन्होंने क्लासरूम में बैठा दिया। माई हैबिट की इन द क्लासरूम जस्ट बैक बेंचर ना, मैं क्लास के पिछले बेंचर में पहले दिन बैठा हुआ। जस्ट आई ऑब्जर्विंग वन थिंग, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब तक फैकल्टी नहीं आई, फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल दैट टाइम,
भले एक दूसरे को जानते नहीं हो, बट मैंने एक चीज महसूस किया, जस्ट रियलाइज कि वन स्टूडेंट स्टैंडिंग अपने पोजीशन से और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टूडेंट थे उनके पास जाता था और उनसे बात करने की कोशिश करता, वी वांट टू टॉक। मेरे अंदर से आवाज आती थी, इनसाइड माय वॉइस माय हार्ट इज वेरी ओवर स्मार्ट, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है ना। सच टाइप के स्टूडेंट आपके साथ भी हुआ। इसी समय एक दूसरा भी बच्चा था क्लास में, कॉर्नर में बैठा हुआ था, ठीक है ना। इन द लोकल लैंग्वेज इन द वाराणसी दिस इज द कोपचा ना, बाकी को नहीं समझ में आएगा, बट इज द कॉर्नर। बट वो भी एग्जाम पास करके आया था, ही आल्सो क्वालिफाइड एग्जाम, आल्सो इंटेलिजेंट, नो डाउट। बट वो कॉर्नर में बैठा था, वो किसी से बात नहीं करता था। आई हैव सेम आंसर फॉर दैट। उसके लिए भी मेरे अंदर एक वर्ड था, बड़ा ही डफर है, इज अ वेरी डफर, बनारस में बोलते घोचू है। आंसर इज हियर, in the classroom there are two types of students. One, he try to a lot of communication, over smart. One student they can't communication, just send to, उन्हें क्या बोला हमने, डफर बोल दिया। तो स्मार्ट इज नथिंग, अगर आप ज्यादा बोलोगे यू आर ओवर स्मार्ट, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे यू आर डफर। इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, आपका मोबाइल फोन, इंटेलिजेंट फैन, एवरीथिंग स्मार्ट जो होगा दैट विल बी कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर मैं पंखे के बारे में बात करूं, फैन के बारे में बात करूं, नॉर्मल फैन मैनुअली ऑपरेट, इंटेलिजेंट फैन रिमोट ऑपरेट, एंड स्मार्ट फैन दैट फैन कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू वाईफाई, थ्रू डायरेक्ट लाइन केबल, थ्रू अ लॉट ऑफ ऑप्शन, ब्लूटूथ आल्सो। आप दुनिया के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द स्मार्ट। जस्ट आई टेलिंग कि माई क्लासरूम इज अ स्मार्ट क्लासरूम, वेरी सिंपल मैनर, वेरी क्लियर मीनिंग। in your classroom everything like tube light, like bulb, like board, door and every devices that connect to the internet, ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब बहुत ही आसान है। अपकमिंग टाइम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी। 5G नथिंग, 5G नथिंग, इट इज जस्ट एवरीथिंग ट्राई टू द कनेक्ट टू द इंटरनेट। हर चीज को मुझे इंटरनेट से जोड़ना है, ये 5G में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है 5G, ठीक है ना। हमने कहा स्मार्ट वर्ल्ड, तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, ये हिंदी में ही है, बट होपफुली ऑल आर गेटिंग दिस वीडियो वेरी इजी मैनर। यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिए, आज लेट नहीं रखेंगे। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं।
5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। दुबई। Okay, this is just one video regarding the 5G introduction. तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज ओवर हो चुकी हैं। इन इंडिया अपकमिंग दिसंबर 5G सर्विस विल बी नाउ स्टार्टेड हियर। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। MTNL एंड अदर कंपनी भी इसको शुरू करेंगी। BSNL तो ऑलरेडी 4G में जो उनका इक्विपमेंट है, BSNL इक्विपमेंट, दे आर बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट 5G के साथ इनबिल्ट ही रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अगेन कम बैक। ओके, so we just discussed regarding the normal fan, manually operate, no problem. I hopefully everybody got this point. Intelligent fan, sensor and memory chip will be there and it controlled by the remote system. The smart fan, no problem, no doubt, it will connect to the internet. My phone is a smartphone. You have a lot of features, but this phone you can't connect to the internet. That means ki not a smart. When you connect this phone to internet, this becomes a smart. So same manner in your home, in your offices, in your classroom, you can say that classroom, that home, that offices, that building will be a smart if in that building at that location everything capable to connect to the internet and also internet working. Without when internet not working, their smartness is over. Okay. Now in the current scenario, AI आज के समय में artificial intelligence, normally if you are go to the market, so somebody tell, अरे now intelligent phone in the market. So always keep in the mind intelligent phone in the current scenario, that means AI, artificial intelligent phone. ये वाला नहीं है, ये वाला अगर आज की डेट में ये ऑलरेडी ओवर हो चुका है। Current you go to market, now in the market intelligent phone come, so that meaning is वो AI फोन की बात कर रहा है, that is AI phone. Okay, so now again what you think about AI? अगर आप मुझसे पूछूं कि अब AI पंखे में क्या होगा तो क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया, एनीवन कुछ सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए? मृणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आर यू देयर? अनम्यूट प्लीज। मृणाल कुमार, मृणाल, लगता है मोबाइल ऑन करके गायब हो गए हैं। आकृति,
You can mute, unmute. Yes, sir. अच्छा, बाकी जो तीनों चीजें थी आपको समझ में आया? आप Yes, sir. AI फैन में क्या होना चाहिए? सर एआई में सर वो खुद से ही मतलब अपने आप को मतलब कंट्रोल कर सकता है, लाइक चीजों को सीख जाता है समय के साथ अकॉर्डिंगली। जैसे हम लोग उसको, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस जाते हैं 10 बजे, तो हम लोग अपना फैन ऑन ऑफ कर देते हैं ना, लाइक ऑफ कर देते हैं, सॉरी। तो वो खुद 10 बजे के करीब नेक्स्ट डे 10 ओ क्लॉक में ऑफ हो जाएगा। तो ये फीचर मतलब एआई बेस्ड है, जो कि मशीनें टाइम के साथ सीख जाती हैं, मतलब क्विक लर्नर भी नहीं होते हैं, समय के साथ सीखते हैं वो। ठीक है आकृति, इफ यू आर, अगर आप यहाँ पे हो तो तभी मैं आपको नौकरी दे देता। थैंक यू सर। ऑटो सेंस, वेरी नाइस। ऑटो सेंस मतलब अभी क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आकृति ने बहुत अच्छा बताया, ऑटो सेंस फीचर विल बी इनेबल्ड इन दिस। स्मार्ट तो रहेगा ही, हर चीज रहेगा, उसमें वन फीचर ऑटो सेंस कर देंगे। ऑटो सेंस में क्या होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल पहले अगर हम बात करते हैं ओल्ड टाइम में कि यूट्यूब, आपने शायद नया यूट्यूब यूज किया होगा, मैंने तो उस समय से यूज किया जब यूट्यूब पुराना था और अभी नया वाला। तो पहले यूट्यूब, सपोज करो कि आपने यू जस्ट परचेज न्यू लैपटॉप एंड यू मेक फर्स्ट टाइम जीमेल अकाउंट एंड ओपन योर लैपटॉप, फर्स्ट टाइम कनेक्ट टू द इंटरनेट। आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाया और पहली बार अपने लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़कर आप इंटरनेट करने जा रहे हैं और आपने यूट्यूब खोला फर्स्ट टाइम। तो यूट्यूब को मालूम नहीं, यूट्यूब डोंट नो हु आर यू, तो जस्ट फर्स्ट पेज बाय डिफॉल्ट ओपन दैट पेज सेट बाय द यूट्यूब। पहला पेज जो खुलेगा, जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया वही खुलेगा। बट इन यूट्यूब ऑटो सेंस सॉफ्टवेयर यानी एआई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनबिल्टेड नाउ। तो अब क्या होगा, जैसे कि आप में अनुभव है, आप में देवांशी है, ठीक है, सब लोग हैं, कुछ लोग हैं, सम पीपुल दे लाइक, उन्हें किशोर कुमार के गाने पसंद है, कुछ ऐसे जिन्हें कॉमेडी पसंद है, सम पीपुल ऑल टाइम सर्चिंग द वीडियो गेम, ठीक है ना। तो सबका अपना चॉइस है, एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन हैव द सेल्फ चॉइस, उनके सबके अपनी चॉइस होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो दे इज ओपन, तो जो हमारा यूट्यूब है वो ऑलरेडी समझ जाएगा। सपोज करो आकृति, इनको म्यूजिक बहुत पसंद है और एक खास तरह का म्यूजिक पसंद है, तो ऑलरेडी वो समझ जाएगा, ऑलरेडी अंडरस्टैंड, ऑलरेडी ऑटो सेंड कि आकृति को ये म्यूजिक पसंद है। व्हेन शी ओपन द नेक्स्ट टाइम यूट्यूब, तो बाय डिफॉल्ट वो उन्होंने जो चीज सर्च किया होगा, जो उनकी थिंक है, दे रिकमेंडेड वीडियो ऑलरेडी शो इन द देयर लिस्ट, उनके लिस्ट में वही चीज शो होगा। ये ऑटो सेंस है, ठीक है ना। तो इन्होंने वेरी गुड एग्जांपल दिया पंखे के बारे में, फैन के बारे में, कि फैन क्या करेगा। सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करें, मान लेते हैं कि आपके यहाँ मृणाल है, सुन नहीं रहे तो इनको इन्हीं के लिए बोल देते हैं ताकि कल याद रहेगा। सपोज करो मृणाल सपोज एआई बेस्ड फैन परचेज किया और अपने घर में लगा दिया, ठीक है, और ये रात को हर एवरी नाइट एट 2 PM या 2 AM, नाइट मतलब 2 मिड, दे क्लोज द फोन फैन, 2 बजे अपने पंखे को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो पंखा एआई बेस है, इंटेलिजेंट बेस है, तो ऑटोमेटिकली ही सेंस की मृणाल एवरी डे ऑटो सेंस के अनुसार ये डिसाइड कर लेगा कि एवरी डे एट 2 AM अर्लियर इन द मॉर्निंग आफ्टर मिडनाइट ही क्लोज द फैन, तो अपने आप वो पंखे को बंद कर देगा। तो एआई फैन, तो एआई का द फर्स्ट एग्जांपल था रोबोटिक सिस्टम। जितने भी रोबोट हैं उन सबको रोबोट, तो क्या करता है, हमसे ही हम जो सामने खड़े हो जाते हैं, जो एक्टिविटी हम करेंगे वही एक्टिविटी वो सामने वाला उसको वो करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फॉर टुडे। टुमारो वी डिस्कस ट्रेडिशनल नेटवर्क, टुमारो योगा डे, आफ्टर टुमारो वेडनेसडे वी डिस्कस रिगार्डिंग traditional network and how to migrate this traditional network in the current network. Okay, so have a nice day. If you have any doubt, any question, you can ask. Otherwise आप लोग in the messaging just write some message and leave this session for attendance. आप लोग कुछ लिखिए और सेशन को छोड़ दीजिए।
Thank you. You write something because it is your attendance. आप इसको लिख दीजिए प्लीज. Yes, thank you.